السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین ذوالفقار اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے طالبان کو سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں طالبان کو 90 کی دہائی کو بھول جانے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر خارجہ نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان قیام امن میں شراکت دار ہے، نہ کہ تنازع کا۔ فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں، پاکستان افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ہم امریکہ کے محفوظ انخلا کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ نے فیصلہ کر لیا کہ جو ان کا ہدف تھا وہ حاصل انہوں نے کر لیا، اپنے مین لینڈ کو انہوں نے پروٹیکٹ کر لیا ہے، اب انہیں وہ خدشہ نہیں ہے۔ طالبان کے ساتھ بھی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف یا ان کے کسی حلیف کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان خلا میں ہماری خواہش کی ہے، کوشش کی ہوگی کہ ان کا سیف وڈرال ہو، اور اس وڈرال کے لیے ہم جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خواہش تو ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور استحکام ہو۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں، اور وہ رول ہو جو امن اور استحکام کو ترجیح دے۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری تعریف ہے، ہماری کوشش ہے کہ جتنے افغان کھڑے ہیں، چاہے افغان حکومت کے لوگ ہیں یا طالبان ہیں، وہ مل بیٹھ کے ایک سیاسی حل تلاش کریں۔ وہاں کا پروسیس جو تعصب کا شکار ہو گیا تھا، میری اصلاح کے مطابق اب دوبارہ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو تعصب کی کنفیوژن ہے نا، ڈائلاگ کی، وہ ختم ہو اور بات آگے بڑھے۔ چاہے باہر کی فورسز جو ہیں ان کا انخلا ہو جائے، ملک تو ان کا ہے نا، طالبان بھی افغان ہیں اور جو حکمران ہیں وہ بھی افغان ہیں، تو اپنے ملک کا فیصلہ انہیں خود کرنا ہے۔ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے جو طالبان ہیں انہیں بھی ماضی سے سیکھنا چاہیے اور ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے، 90 کی دہائی کو دہرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم نے سیکھا ہے نا، ہم نے بھی سیکھا ہے، اور سیکھ کر ہم نے اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارٹنرز پیس میں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا اب افغانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ ہماری خواہش ہے کہ امن ہو، اور امن کے ذریعے ہمیں براستہ افغانستان سینٹرل ایشیا تک رسائی ملے، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہو، جس سے ہمارے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹ بھی ہوں اور بائیلیٹرل اور ریجنل ٹریڈ بھی فروغ پائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور دھماکے میں دہلی کے بینک سے پیسوں کی منتقلی کی گئی، جس کی تفصیل جلد سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی کا کلبھوشن کے بعد یہ دوسرا بڑا ثبوت ہے۔ فواد چودھری نے ناراض بلوچوں سے مذاکرات پر کام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اکاؤنٹس ہیں، جو لوگوں کے نام ہیں، دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کلبھوشن جادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا انڈیا کا، جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے۔ جو ناراض بلوچستان کے یا قوم پرست تھے، جو براہ راست لنکڈ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ، جو تو ہندوستان کے ساتھ لنک تھے اور ٹیررزم میں ملوث تھے، ظاہر ہے ان کے لیے تو کرائٹیریا اور ہوگا، لیکن جو ناراض لوگ ہیں اور سیاسی مسائل کی وجہ سے ناراض تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے ایک باقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ بلوچستان میں امن اور استحکام سے پاکستان میں ترقی ہوگی۔ سخت جدوجہد سے حاصل امن کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ آرمی چیف نے بلوچستان قومی ورکشاپ کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، صوبے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کا عمل تیز کرنا ہوگا۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کی 7ویں قومی ورکشاپ کے شرکا سے خطاب میں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ، بیوروکریٹس، سول سوسائٹی، شعبہ تعلیم اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان اور پاکستان میں ترقی، خوشحالی اور ملک دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں امن و استحکام سے ہی پاکستان میں ترقی ہوگی۔ قربانیوں سے حاصل امن کے ثمرات سمیٹنے کا وقت ہے۔ صوبے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کا عمل تیز کرنا ہوگا۔ ISPR کے مطابق ورکشاپ کا مقصد بلوچستان کی مستقبل کی قیادت کو اہم قومی اور صوبائی امور پر آگاہی دینا تھا۔ مریم نواز نے وزیراعظم کے بلوچ عسکریت پسندوں سے بات کرنے کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت عالیہ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے حکومت سے ہر قسم کی ڈیل کی تردید کر دی۔ صحافی کے سوال پر لیگی نائب صدر کا کہنا تھا کہ حکومت کب جائے گی اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ حکومت جب جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ اس وقت PMLN اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جموں کشمیر میں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوئے PMLN انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ آج اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، جو کل یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف ضرورت سے زیادہ بجلی بنا گئے ہیں، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو تو ضرورت سے زیادہ بجلی بن رہی ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو بجلی کم بن رہی ہے۔ بھئی خدا کا واسطہ ہے، قوم سے سچ بولیں، قوم سب جان گئی ہے یہ حکومت جب جائے گی دوبارہ نہیں آئے گی۔ CPEC فلیگ شپ پروگرام ہے، علاقائی تعاون بڑھے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے چین کی کمیونسٹ پارٹی اور عالمی سیاسی جماعتوں کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ترجیحات کو علاقائی سیاست سے علاقائی اقتصادیات میں بدلا۔ انسانیت کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ عوام کی بے لوث خدمت سے ہی سیاسی جماعتیں عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہیں۔ Pakistan and China are iron brothers. We support each other on issues of our respective core interests. China-Pakistan Economic Corridor, the CPEC, the flagship project of BRI, complements Pakistan's renewed effort of this geo-economic shift with emphasis on economic integration and regional connectivity. Pakistan supports China's effort to safeguard world peace, contribute to global development, and preserve international order. We are ready to contribute more than our share to protect this invaluable planet, heal it from centuries of neglect. امریکہ رات کی تاریکی میں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ دنیا میں واحد سپر پاور کہلانے والی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فوج بگرام کے ہوائی اڈے سے ایسے فرار ہوئی کہ پوری دنیا میں تماشا بن گئی۔ امریکی فوج رات کی تاریکی میں بگرام کا ہوائی اڈا خالی کر گئی۔ جاتے ہوئے ہوائی اڈے کی بتیاں بھی بند کر دی گئیں تاکہ کسی کو ان کے جانے کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ حتیٰ کہ امریکہ بہادر نے کابل انتظامیہ کی فوج تک کو خبر نہ ہونے دی اور صبح تڑکے روانگی ڈال دی۔ دنیا کی واحد سپر پاور کہلانے والی فوج افغانستان سے رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ امریکہ نے 30 اتحادی ممالک سے ساتھ مل کر 20 سال قبل افغانستان پر حملہ کیا، مگر اب وہی فوج مزاحمت کے ڈر سے ایسی رفو چکر ہوئی کہ پوری دنیا میں تماشا بن گئی۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنا سب سے بڑا بگرام ہوائی اڈا رات کی تاریکی میں بغیر بتائے خالی کیا۔ روانگی کے وقت ہوائی اڈے کی روشنیاں بند کر دی گئی۔ اس حوالے سے نئے افغان کمانڈر کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا۔ افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے کے نئے کمانڈر کو امریکی افواج کی روانگی کا 2 گھنٹے بعد علم ہوا۔ بگرام ہوائی اڈے کے نئے افغان کمانڈر جنرل میر اسد اللہ کوہستانی نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ جب ہم نے سنا کہ امریکی فوج نے بگرام ہوائی اڈا خالی کر دیا ہے تو ہم اسے افواہ سمجھے، لیکن
लेकिन सुबह 7 बजे के करीब मालूम हुआ कि अमरीकी फौज वाकई जा चुकी है। अफगान फौजी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौज के बगराम हवाई अड्डा छोड़ने के बाद वहाँ मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूटमार की। अगर अमरीकी एहलकार हवाई अड्डा खाली करने से पहले बता देते तो लूटमार से बचा जा सकता था। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान ने सियासी महाज पर भी पेशरफ्त तेज करने की हिकमत अमली बना ली। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है तालिबान अगस्त में अमन मंसूबे से मुतालिक तहरीरी मुआहदा पेश करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमन के हवाले से मुज़ाकरात में आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान अमन से मुतालिक तहरीरी मुआहदों के तबादले में 1 माह लग सकता है। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि बलूचिस्तान को सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध ने कभी बलूचिस्तान के पानी का पूरा हिस्सा नहीं दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने लियाकत शाहवानी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा न्याजी इरसा गठजोड़ से सूबों के दरमियान नफरतें फैलाई जा रही हैं। हमारा हिस्सा जो है गुज़िश्ता 20 साल में सिंध ने कभी पूरा नहीं दिया। वाटर रिकॉर्ड के तहत ये दर्ज है बलूचिस्तान और केपीके को सिंध जो है पानी फराम करने का पाबंद है। इस वक्त इंडेंट है इरसा का जो हमारा ड्यू राइट शेयर है बलूचिस्तान का 10,900 क्यूसिक है। इरसा हमें रिलीज कर रहा है लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी जो है सिंध से मिल रही है। सिंध जो है बलूचिस्तान को 42% शॉर्ट फॉल पे हमें पानी फराम कर रही है। आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है इंतहाई नामुनासिब गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट, क्योंकि अगर सिंध के पास पानी नहीं होगा तो वो बलूचिस्तान को कैसे देगी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने एलिगेशन लगाया कि सिंध जो है वो बलूचिस्तान का पानी चोरी कर रहा है। हमेशा केस लड़ा सिंध बलूचिस्तान के हवाले से पानी का। अवाम ने अपने भाइयों में नफरत फैलाने की जो पीटीआई का शेवा है कि नफरत की सियासत, गंदी सियासत करने का, वो हम चाहते नहीं कि जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान का हमें जवाब दो, नहीं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। न्यूयॉर्क में मुबैना प्रॉपर्टी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए और आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की। मुलजिम की अदम मौजूदगी में जमानती दरख्वास्त पर समाअत मुस्तरद कर दी गई। वकील फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि अगर आप हुक्म देंगे तो आसिफ अली जरदारी आ जाएंगे, आप तारीख बता दें कि किस दिन वो पेश हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनुल्लाह ने आसिफ अली जरदारी को कल सुबह पेश होने का हुक्म दे दिया। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इख्तदार में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट के बाद पहले बिल के अंदर ₹3.25 बिजली बढ़ गई है। ये तमाशे लगेंगे, महंगाई और बढ़ेगी। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इख्तदार में है। तमाशा लगा हुआ है। अभी बजट पास हुआ है, पहले ही बिल के अंदर ₹3.25 बिजली बढ़ गई है, जिसमें से चले फ्यूल एडजस्टमेंट हमने मान ली, बाकी ₹1.5 बिजली क्यों बढ़ी है, इसको कोई जवाब देने वाला है। ये आज इस मुल्क के हालात है। अभी बजट पास हुए आज 6वां दिन है, पहले बिल के अंदर ही बिजली बढ़ गई है। कराची समेत सिंध भर में 10वीं के इम्तिहानात का दूसरा दिन भी बदनज़मी का शिकार रहा। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हैदराबाद तालीम बोर्ड के नकल रोकने के दावे हवा हो गए। आज होने वाला हिसाब का पर्चा शुरू होते ही आउट हो गया। इम्तिहानी मराकिज में तुलबा हल शुदा जवाबात के जरिए अपने पेपर हल करने लगे। जिला सांगड़ में भी तुलबा नकल करते हुए आम नजर आए। इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नजर आया। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। घोटकी से टंडोवालायार तक बूटी माफिया का राज लग गया। 10वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। नवाब शाह में तालीमी बोर्ड आज भी पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार रखे हुए है। 9 बजे शुरू होने वाला पर्चा 8:30 बजे ही तुलबा के हाथ लग गया। हल शुदा सवालात तुलबा के पर्चे आसान बना गए। तंगवानी में बूटी माफिया स्कूलों में घुस गया। दीवारों और खिड़कियों से हल शुदा जवाबात तुलबा को फराहम किए गए।
सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्चे आउट होने और नकल के खिलाफ महकमा तालीम के बड़े फैसले। सूबाई मुशीर निसार खोड़ो ने इन्विजिलेटर्स और एक्सटर्नल्स और इंटरनल समेत बोर्ड अमले के मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डिवाइसेस लाने और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दे दिया। अगर इसके बावजूद मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ तो जब्त कर लिया जाएगा, जबकि इंतजामिया और पुलिस इम्तहानी सेंटर्स के हुदूद में दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल कराने की पाबंदियाँ होंगी। तलबा और तालबात के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया। तालीमी निज़ाम में आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि पाकिस्तान में 32 तालीमी बोर्ड्स हैं। ऑनलाइन निज़ाम बच्चों की सहूलत के लिहाज से इनकलाबी इक़दाम है। तलबा और तालबात इम्तहानात की फ़ीस ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अदा कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट दें, क्वेटा की नर्सें मुतालबात के हक में डट गईं। डीजी हेल्थ की यकीन दहानियां भी एहतजाज को ना रोक सकी। एहतजाजी अफराद का कहना है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। क्वेटा की नर्सें अपने मुतालबात के हक में डट गई हैं और डीजी हेल्थ की यकीन दहानियां भी एहतजाज को ना रोक सकी। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर क्वेटा से हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, क्या अभी भी एहतजाज जारी है? जारी रखी हुई और बलूचिस्तान असेंबली के बाहर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो अपोजिशन के अरकान जो है वो अब मुजाहिरीन के पास पहुंचे हैं और उनके साथ भी एक सेशन जो मुज़ाकरात का चल रहा है, क्योंकि हुकूमती जो हुकूमत की जानिब से नुमाइंदे आए थे जिनमें डीजी हेल्थ है और जिला इंतजामिया थी, उनके साथ तो तमाम मुज़ाकरात जो है वो नाकाम ही होते रहे। आप उम्मीद की किरण नजर आ रही कि शायद अपोजिशन की यकीन दहानी पर जो है वो मुजाहिरीन मान जाए, क्योंकि मुजाहिरीन का कहना है कि अपोजिशन की बात पर जो है वो यकीन किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से उनके साथ कर रही है और बार बार जो है उनके मसाइल जो है वो हल करने की यकीन दहानी कराकर और बाद में जो है एहतजाज खत्म करा के कोई हल नहीं निकालती, तो इस पर जो है हुकूमत की कोई बात जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए बुशरा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीवी में मुबैना जिनसी हिरासगी केस का फैसला सुना दिया और फैसले में कहा गया है कि खातून शिकायत कुनिंदा अफसरान पर जिनसी हिरासगी साबित करने में नाकाम रहीं। इंक्वायरी कमेटी इल्ज़ाम साबित न होने पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। अदालत ने इंसदादे जिनसी हिरासगी कानून पर सवालात भी उठाए। अदालत ने कहा कि दफातर में खवातीन की इंसदादे जिनसी हिरासगी का कानून सिर्फ दिखावा है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में जमीन का हिस्सा ना देने पर एक शख्स ने खुद को आग लगा दी। आग से जाम मोहम्मद नामी शख्स के जिस्म का 70% हिस्सा जल गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रियाज का जमीन का तनाज़ा चल रहा था। चौधरी गुज्जर नामी शख्स जमीन नाम नहीं कर रहा था। जंग में दरियाए जेहलम में डूबने वाले नौजवान की लाश 45 रोज के बाद भी ना निकाली जा सकी। वालिदैन और बहनों ने दरिया किनारे कैंप लगा लिए हैं। खिज़र अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। जंग में रिश्तेदारों के साथ दरिया किनारे सैर के लिए जाने वाला नौजवान कत्ल हुआ या दरिया में डूबा। मामला 45 रोज बाद भी हल ना हो सका। 22 बरस के तौकीर के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। खुले आसमान तले दरिया किनारे बैठे बूढ़े वालिदैन अपने नौजवान बेटे की लाश को तरस गए। कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं जब भी इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बेटा घर चले, ये कहती है अबू भाई के बगैर कौन सा घर, जब तक हमें भाई नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त गुजार हूँ कि जिस तरह भी हो बहुत जल्द मुझे तौकीर अब्बास की नाश कम अज़ कम बरामद करके दे दी जाए ताकि मैं बेटियों को लेके घर जाऊँ। तौकीर की बहनें अपने भाई की लाश न मिलने तक घर जाने के लिए तैयार नहीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान की लाश की तलाश जारी है। कौमी क्रिकेट टीम बजरिया बस डर्बी से कार्डिफ पहुंच गई। खिलाड़ी आज होटल में क़याम और कल सुबह प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने लीड्स इंग्लैंड में मौजूद अपने खुसूसी फ़ैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। वीडियो कॉल में अकील नामी बच्चे से बात की और उसको मैच देखने के लिए टिकट देने का भी उन्होंने ऐलान किया। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिकेट को फॉलो करते हैं आप। कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? Would you like to come and watch a game in Leeds? Yes? Okay.
Okay, then I will talk to your father and we'll arrange the tickets. वेलकम बैक। भारत में अंधेर नगरी चौपट राज, कोरोना के हाथों परेशान भारतीय अवाम को नौसरबाज लूटने लगे। सिर्फ मुंबई में वैक्सीन के नाम पर हजारों भारतीयों को नमक मिले पानी के इंजेक्शंस लगा दिए गए। जाली कोरोना वैक्सीन के बढ़ते हुए केसेस के बाद 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जाली वैक्सीनेशन बनाने वालों ने भारतीय अवाम को $28,000 से ज्यादा के टीके लगाए। डेरा गाजी खान में कुदरती हुस्न से मालामाल कोहे सुलेमान के वसी पहाड़ी सिलसिले में कई ऐसे कुदरत के हसीन मनाजिर हैं जिनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। सिरी नामी संगलाख पहाड़ों में दुश्वार गुजार और ख़तरनाक रास्तों से गुजर कर सब्जी माइल झील का खूबसूरत मंजर नजर आता है, जहां पहाड़ी झरनों से गिरते शफाफ पानी के मनाजिर इंसान को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। इसी पर देखते हैं हसनैन अहमद की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान से 50 किलोमीटर के फासले पर यह चश्मा या आबशार किसी अजूबे से कम नहीं है। कोहे सुलेमान के इन संगलाख पहाड़ों में ऐसे आबशार का गुमान भी मुश्किल है। सिरी नामी इस मकाम पर जाने के लिए मरकजी शहरा के बाद जिली शहरा भी महज 4 से 5 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाती है, जिसके बाद दुश्वार गुजार और पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। रास्ता इतना तंग है कि सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही इस पर सफर कर पाते हैं। ये पथरीला रास्ता खत्म होने के बाद फिर शुरू होता है इन दुश्वार रास्तों का पैदल सफर। आधे घंटे के पैदल तकलीफदा और ऊंचे नीचे टहलों पर सफर के बाद जब ये चश्मा या आबशार और उसके ऐन नीचे ये सबज मायल झील नजर आती है तो न सिर्फ इंसान की थकन दूर हो जाती है बल्कि वो खुद को कुदरत की सनाई पर मजबूर पाता है। सबज मायल झील को देखकर गुमान होता है कि इंसान कोहे सुलेमान नहीं बल्कि हिमालय की बुलंद घटाइयों में किसी झील पर मौजूद है, जिसका पानी इतना शफाफ है कि नन्ही मुन्नी मछलियां तैरती हुई साफ नजर आती हैं। यहाँ पर मौजूद सभी सियाह कुदरत की इस शानदार कारीगरी की तारीफ के साथ साथ दुश्वार गुजार रास्ते और सफरी तकलीफ की शिकायत करते नजर आते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों में ये आबशार ही मकामी लोगों की पानी से मुतालिक जरूरियात को पूरा करती है। इसलिए मकामी लोगों ने यहाँ सियाहों की आमद रफ्त को नापसंद करते हैं और रास्ता बंद करके आगे जाने से मन्ना की तहरीरें लिख रखी हैं ताकि ज्यादा सियाहों की आमद से इस पानी की शफाफियत आलूदा न हो। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत रोजाना लाखों गैलन की शक्ल में और सारा साल बहने वाले पानी को जखीरा करने और इस जखीरे को इस तरह से इस्तेमाल में लाने का बंदोबस्त करे कि मकामी लोगों का ये शफाफ पानी इसी तरह दस्तयाब होने के अलावा सियाहों के लुत्फ अंदोज होने का जरिया भी बन सके, जिसके लिए सबसे बुनियादी शरायत यहाँ आमद रफ्त के लिए पुख्ता सड़क की तामीर है। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज, डेरा गाजी खान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।